Hello friends, welcome back to our channel Learn with Nishman. Again we are continuing our chapter 16. Very important one, that's why I'm doing each and every section. Right bache? Starting with the very new topic, that is your section 304B. Okay? It's also important, so pay your attention. 304B talks about dowry death, right? Dowry death. Dowry death क्या होती है बच्चे? Dowry is your दहेज. ओके तो ये अब के टाइम में बहुत कम है, बट इट्स अ प्रोविजन इन योर आईपीसी. यू शुड नो अबाउट दिस. डाउरी डेथ, जब फीमेल की डेथ या सुसाइड, अबेटमेंट टू सुसाइड किया जाता है फॉर द डिमांड ऑफ डाउरी, that is held under section 304B. All right, बच्चे, this section was added in 1986, so it's a very recent inclusion in our IPC. Dowry is not defined in IPC. Remember that there is no definition of dowry. If you want to know about what exactly its meaning, refer to section 2(1) of Dowry Prohibition Act. ये हमारा एक एक्ट आया था जिसमें कंप्लीट नॉलेज अबाउट डाउरी है. डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961. द सेम डेफिनेशन गिवन that is taken in IPC, right? So in this, first thing you should know about it, here we only talk about death of a woman. Okay, death of a woman is only considered. This is the first requirement. The next is एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस में. ठीक है बच्चे, सर्कमस्टांसेस क्या होने चाहिए? एबनॉर्मल. एबनॉर्मल मीन्स दैट फॉर एग्जाम्पल लाइक फीमेल को पॉइजन दिया गया है और देयर आर सीवियर बर्न्स ऑन हर बॉडी, हैंग कर दिया गया है, या उसको कोई सीरियस इंजरी दी गई है. राइट, दीज आर द वेरियस kinds of abnormal circumstances in which one can easily refer that it's a kind of a dowry death. Then the third requirement you should know is it must be within 7 years of marriage. Right? The death must be within 7 years of marriage. Next is soon before her death she was subjected to cruelty. All right bache, soon before death subjected to cruelty. Okay, so cruelty आप पढ़ेंगे IPC के ही सेक्शन 498A में. ओके बच्चे, यहाँ पर आप रीड करने वाले हैं. सो दिस सेक्शन इज रिलेटेड विथ 304B. It means this section is simply a cruelty, and here it is cruelty for dowry. All right, so section 498 is includes 304B. All right, तो 498A के अंदर ही 304B होती है. हम हमेशा 304B को 498A के साथ रीड करेंगे because it talks about wholesome, that's cruelty, and here it's only the dowry related cruelty. Okay, then the next thing is बच्चे, we have one more section in your book. आप confuse ना होइए, आपको एक section मिलेगा that is your 306. all right, 306 है बच्चे, जिसमें abatement of suicide है. ओके हम उसको सेपरेटली भी रीड करेंगे, बट यहाँ पे आपको पता होना चाहिए 306 में अबेटमेंट ऑफ सुसाइड. यहाँ पर 304 में क्या है? जस्ट फॉर द डाउरी, तब सुसाइड किया गया हो. तो यहाँ पर क्या होगा? हस्बैंड एंड रिलेटिव्स जो लाइबल होंगे, दैट इज जस्ट हस्बैंड एंड रिलेटिव्स. एंड इन 306 इट कुड बी एनी पर्सन. तो डिफरेंस देख रहे हैं, साथ साथ मैं आपको कोरिलेट कर रही हूँ दूसरे सेक्शंस भी. Don't get confused. All right, so this is related to abatement of suicide and this is for dowry death. If any such act happens after 7 years, यही act अगर 7 years के बाद होता है, you will frame the charge under 306. Right,
304 के लिए सिर्फ 7 ईयर्स का होना चाहिए. एनी पर्सन इसमें क्लेम लाइबल हो सकता है, एंड दिस इज जस्ट रिलेटेड टू डाउरी. हियर इट कुड बी एनी रीज़न, एनी अदर रीज़न जिसके लिए सुसाइड के लिए उसको अबेट किया गया हो. ऑल राइट, so now you completely know about that. In the cruelty in this there is the purpose of dowry. यहाँ पर cruelty किस purpose से की जाती है बच्चे? dowry की. मैं आपको एक example देती हूँ. H, the husband is married to W, right, his wife, on the date, some date, like let it be X, and within 7 years of marriage W dies. Either it's a case of suicide or a homicide, right, and there are unnatural circumstances also. तो इससे बच्चे आप क्या फ्रेम करेंगे? 304B creates a liability strict in nature. यहाँ पर आपकी strict liability होती ही होती है. ओके, ये चीज़ ध्यान में रखना है बच्चे. जो चीज़ एक और है, sometimes women is killed inside the house and there is no circumstantial evidence. कोई एविडेंस नहीं है जिससे आप प्रूव कर सकें कि ये 302 इस पे चार्ज हो या 306. सो अगर आप 302 या 306 प्रूव नहीं कर पा रहे, 302 अभी हमने पढ़ा था रिसेंटली, देन देर इज़ नो बैरियर कि 304 नहीं लगेगा, राइट. सो 304B लगाने के लिए देर इज़ नो नीड कि आप 302 पहले फर्दर प्रूव करें, right. If there are ingredients of dowry death, so you fulfill all the conditions of this section, then husband and relative will be liable per se, even though it could not be proved that they any of them killed. ठीक है, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, बट इफ सिचुएशंस आर लाइक दैट विद इन 7 years ऑफ मैरिज, एबनॉर्मल कंडीशन है, वुमेन है, तो आप सीधा 304B लगा सकते हैं. देयर इज अ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी. समझ में आया बच्चे? सो एक्ट्रेस रियस इज नॉट दैट एक्यूज्ड किल्ड हर, बट दैट शी वाज डाइड इन अननेचुरल डेथ. ओके, एविडेंस कुछ नहीं है आपके पास कि हस्बैंड ने किल किया है, रिलेटिव्स ने, बट इफ ऑल दीज कंडीशंस आर फुलफिल्ड देन देयर इज दैट स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड ही विल बी लाइबल अंडर 304B. Now बच्चे, for dowry death it is essential to prove that victim was subjected to dowry cruelty. If there was normal cruelty तो वो 306 के साथ आपका 498A लग जाएगा, but if it dowry cruelty then 498A के साथ 304B लगेगा. All right, so here soon before doesn't mean immediately before. लिखा हुआ आपकी डेफिनेशन में दैट सून बिफोर द डेथ शी वॉज सब्जेक्ट टू क्रूएलिटी. सो हेयर सून बिफोर डजंट मीन इमीडिएटली, रादर मोर इम्पॉर्टेंट टेस्ट इज वेदर देयर इज द लाइव लिंक बिटवीन द डाउरी क्रूएलिटी एंड द कॉजेशन ऑफ डेथ. ऑल राइट, लाइक इफ दिस इज द डेट ऑफ मैरिज, ओके, this is the date of marriage, this whole period is your 7 years and here she dies. So if on this date and cruelty happen on this date, in date के बीच में if it's a live link connected then it's a case of dowry death. Okay, there has to be a live and effect link between the dowry cruelty and the death. In the case of suicide it has to be examined as to whether the cruelty whenever committed was such a nature that the effect of the cruelty upon the mind of the victim may have continued till the point of time when she committed suicide. Okay, death के time पे जब उसको खुद से मारा गया है और क्रुएलिटी की गई है, उसके बीच में लाइव लिंक होना चाहिए कि उसी की वजह से उसको मारा गया है. एंड इफ़ शी डिड सुसाइड तभी भी देखना है कि क्रुएलिटी इस तरीके से थी कि उसके माइंड पे उसका इफेक्ट तब तक रहा जब उसने सुसाइड किया. समझ में आया बच्चे? And in the cases of homicide it will be whether the cruelty was of such a nature that the state of mind of the accused may have continued till the time when the death was caused. Okay, so if the above is proved, if these all the things are proved, then the time duration doesn't matter and the accused will still be held liable for dowry death even though the dowry cruelty may have taken place much before the causation of death. Okay, so नेक्स्ट थिंग बच्चे देखिए, ये हमने IPC के सेक्शन किए हैं. अब आपका आता है सेक्शन 113B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जहाँ पर एविडेंस मांगा जाता है. ये आपस में सब एक्ट्स रिलेटेड है,
जब चार्जेस फ्रेम होते हैं, कोर्ट में केस चलते हैं, तो हम एविडेंस एक्ट से भी उसको रिलेट करते हैं. सो 304B इज डायरेक्टली रिलेटेड टू 113B. 113B of Indian Evidence Act says that there is a presumption of shall. राइट, प्रिजम्पशन यहाँ पर ये कहती है बच्चे दैट द पर्सन कमिटेड द डाउरी डेथ ऑफ द क्रुएलिटी ऑफ डाउरी इज प्रूव्ड सून बिफोर. राइट, यहाँ पर शैल प्रिजम्पशन हो जाती है, मीन्स कोर्ट के ऊपर कंप्लीट ड्यूटी है, देयर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी दैट it shall presume that it was due to the cruelty that dowry death happened. So 113B is directly related to your section 304B. Okay? अब आपको दोनों सेक्शंस में डिफरेंस पता लग गया बच्चे, 304B एंड 306. 306 applies within 7 years as well as after 7 years. Okay, 7 years within जब cruelty except dowry किसी भी तरीके की क्रुएलिटी की गई हो, एंड इफ़ डाउरी है तो आफ्टर 7 years. बट 304B में क्रुएलिटी होनी चाहिए बट विद इन दी 7 years ओनली, एंड इट अप्लाइज ऑन एनी पर्सन, इट विल अप्लाई ओनली ऑन रिलेटिव्स एंड हस्बैंड. ऑल राइट. अब बच्चे आपका इसी सेक्शन से रिलेटेड एक फेमस केस रहा है, जो मैं आपको केसेस बताती हूँ, ये आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है. यू शुड नो कि हर सेक्शन में एक नई चीज़ क्या की गई थी. ये आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है और ये कहीं नहीं लिखा मिलेगा. रीमा अग्रवाल वर्सेस अनुपम एंड अदर्स. दिस इज द केस ऑफ 2004. इस केस में बच्चे क्या बोला गया था, इफ़ द मैरिज वॉज अ वॉइड मैरिज. वॉइड मैरिज है मीन्स मैरिज की कोई कंडीशन फुलफिल हुई नहीं है, इट इज़ नॉट अ लीगल मैरिज, then also the liability for dowry death can be claimed. Okay, like if wife and husband है, right, and their marriage is void marriage, उन्होंने इतने perform की है, ये void marriage है, right, and now within 7 years of that term wife dies and cruelty of 498A is proved. ठीक है, ये 7 years के टाइम के बीच में ऐसे हुआ है, एंड हेयर इफ द हस्बैंड इज नॉट हेल्ड लाइबल देन इट वुड बी लाइक गोइंग गिविंग लाइसेंस टू द हस्बैंड. राइट बच्चे, अगर हम यहाँ पे हस्बैंड को लाइबल नहीं करेंगे कि मैरिज ही वॉइड थी, तो इट वुड बी लाइक यू आर गिविंग फ्री लाइसेंस टू द हस्बैंड टू कोज द डेथ ऑफ वाइफ्स ऑफ वॉइड और वॉइडेबल मैरिज. राइट, सो ये 304B की एक बहुत अच्छी हमारी एडवांटेज रही है कि इट इज़ एम्ड एट प्रिवेंटिंग द मेनेस ऑफ डाउरी. राइट, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या है, आप हमेशा ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दीजिएगा बच्चे. हमारा ऑब्जेक्टिव 304B का क्या है, टू स्टॉप डाउरी डेथ. राइट, यही है. सो इट डजेंट मैटर कि वेदर योर मैरिज इज लीगल और इलीगल, इट्स द question of a life of a woman. So to stop this, we'd never see whether the marriage is a void or voidable or legal or illegal, right? So in case 304B is aimed to prevent the dowry death, and it is allowed only in cases of lawful marriage. It doesn't matter, right? So in cases of 304B, the criminal liability will arise even if marriage is void. समझ में आया बच्चे. अब आपकी इसमें पनिशमेंट जो है, पनिशमेंट पे भी देख लीजिएगा बच्चे. पनिशमेंट अंडर डाउरी डेथ इज ऑफ 7 years. राइट, 7 years की पनिशमेंट दी गई है आपके इसमें, और इट कुड बी लाइफ इम्प्रिजनमेंट डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टांसेस. अच्छे से पढ़ लीजिएगा बच्चे इसको. दिस इज ऑल अबाउट योर सेक्शन 304B डाउरी डेथ. In next videos, we are going to do next sections. Till then, goodbye. Thank you.